Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really good, really great. This is Manisha Jha, your teacher, and today we are going to learn about food making in plants. Learning objectives: how do leaves make food, structure of a leaf, usage and storage of food by plants, non-green plants, energy flow in living things, and interdependence of plants and animals. So students, now when we look around, we see different types of plants. Plants are necessary for the existence of life on earth. They are the basic source of food for all living beings. They are the truly only living beings that can make their own food. Human beings and all other animals depend directly or indirectly on plants for their food. बच्चों, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई सारे तरीके के डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाई देते हैं. प्लांट जो है वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पर बहुत ज़रूरी है. अलग अलग बेसिक सोर्स होते हैं फूड के लिविंग बींग्स के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एक ऐसा बेसिक सोर्स है जिस पर सभी के सभी लिविंग बींग्स डिपेंडेंट होते हैं. जो लिविंग बींग्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर. सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द लीव्स, ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड फॉर द प्लांट. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उन लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके चलते वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है लीव्स के ऊपर उसे क्लोरोफिल कहा जाता है. नाउ हाउ डू लीव्स मेक फूड, किस तरीके से लीव्स खाना बनाते हैं. द लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट एज दे मेक फूड फॉर द प्लांट. दे नीड water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight to prepare food for the plant. The process of making food by plants with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis. So let us understand the process of photosynthesis. बच्चों, जो leaves होता है उसे kitchen of the plant भी कहा जाता है, क्योंकि leaves ही है जो पूरी प्लांट के लिए खाना बनाता है. तो प्लांट को खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, सनलाइट की मौजूदगी में. उसकी प्रेजेंस में प्लांट अपने लिए खुद खाना बनाता है. किसकी हेल्प से? तो क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से. इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इस प्रोसेस को और अच्छे से समझ लेते हैं. सो नाउ plants absorb water and minerals from the soil with the help of roots. Chlorophyll traps energy from the sun. Leaves absorb carbon dioxide from the air with the help of stomata. They make food in the form of glucose, a simple sugar. Soon it is changed into starch. During this process oxygen gas is given out. इस process के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर जा रहा होता है. Now fact to know. Photo means light and synthesis means making. ये बनकर photosynthesis दोनों जब ज्वाइन किया जाता है तो photosynthesis बनता है इससे. लीफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट, सो वी मस्ट नो इट्स स्ट्रक्चर. लीफ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में, तो इसके स्ट्रक्चर को चलिए जान लेते हैं. सो स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. Leaf blade. The flat, broad surface of the leaf is called the leaf blade. It helps to trap the maximum amount of sunlight. Veins. The tube-like structure that runs throughout a leaf is called a vein. So there are two types of veins, main vein and side vein. So main vein, the vein that turns down the center of a leaf is called the main vein, and side vein. Several small veins that arise from the main vein and run all over the leaf blade are called side veins. बच्चों, अब आ जाते हैं स्टोमेटा पर. So the leaf has tiny pores or opening called stomata. There are more stomata on the lower face of the leaf. Air passes through these stomata. Water vapor is too released through the stomata. Water vapor भी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता रहता है. नाउ पेटियोल. द पेटियोल और द स्टॉक ऑफ द लीफ अटैचेस द लीफ ब्लेड टू द स्टेम. इट ऑल्सो सप्लाइज वाटर टू द लीफ एंड फूड टू द स्टेम. ये क्या करता है? सप्लाई करता है वाटर को लीफ तक और फूड को भी स्टेम में पहुंचाता है. नाउ
Stipules. Stipules are small leaf-like pears that are found at the base of the petiole of many flowering plants. Now, usage and storage of food by plants. So the food is used to get energy to perform activities such as photosynthesis. The food is also used for the growth of the plant. Food का इस्तेमाल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है, प्लांट के ग्रोथ में भी किया जाता है. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स. एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में और लीव्स में. नाउ फैक्ट टू नो, iodine solution is used to test the presence of starch. Starch produces blue-black color with iodine. तो अब आ जाते हैं बच्चों एक्टिविटी पर. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ. लीफ में स्टार्च मौजूद है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, इसको टेस्ट कर लेते हैं. सो फॉर दैट टेक अ ग्रीन लीफ लीजिए, पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब, पुट अल्कोहल इन इट एंड पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर विद वाटर ओवर अ फ्लेम. This will remove the green color from the leaf. Remember, never heat alcohol directly on the flame. It will catch fire directly. कभी भी अल्कोहल को हीट ना करें, गर्म ना करें, नहीं तो वो क्या करेगा, कैच फायर कर लेगा. So now wash the leaf in water. Put a few drops of iodine on the leaf. It will turn blue black, indicating the presence of starch in the leaf. तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं स्किल टेस्ट पर. बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स पर. नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स लाइक माउल्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन एज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. बच्चों वो प्लांट्स जो कि माउल्स और मशरूम्स होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. और इसी वजह से क्योंकि क्लोरोफिल उनमें नहीं मौजूद होता तो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. दे डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड. ये डिकेइंग और डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए. Now fact to know, some plants like pitcher plant and Venus flytrap eat insects to satisfy their nutritional needs. Energy flow in living things. So green plants utilize sun's energy to prepare food. They use some of this energy for their growth and store the rest of the energy in their body. The energy is transferred to plant eating animals when they eat these plants. These animals use some of this energy to work and grow and store rest of the energy in their body. Now when flesh eating animals eat these animals, the energy again passes into the body of the flesh eating animals in form of food. This forms a kind of chain where energy flows from the sun to the plants and then to the animals in the form of food. Such chain is called a food chain. इस तरीके के फूड को क्या, इस तरीके के चेन को फूड चेन कहा जाता है. तो बच्चों चलिए अब आ जाते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है तो इनके बीच में जो बैलेंस है वो नेचर में बिल्कुल अच्छा बना रहे. सो फॉर दैट एक तरफ प्लांट दिया गया है, एक तरफ एनिमल्स है. प्लांट्स आर ईटेन बाय एनिमल्स. नाउ प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर निकालते हैं और वही ऑक्सीजन जो एनिमल्स होते हैं उसे वो ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ. प्लांट्स टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड. एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं और अपने फूड को बनाने के लिए प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. व्हेन एन एनिमल डाइज its body breaks down and gets mixed with the soil which is taken up by plants are nutrients. बच्चों अब आ जाते हैं क्विक ब्रश अप पर. So the process of making food by plants with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis. The leaves prepare food for the plant. The different part of a leaf are leaf blade, veins, stomata, petiole and stipules. Energy flows from the sun to the plant and then to the animals. Plants and animals are interdependent. It is very important to maintain balance between them in nature. So students, I hope you have understood each and every detail of this chapter. अब यहाँ पर जो exercise दी गई है उसमें जो questions हैं, chapter की मदद से इन questions के answer की practice आप खुद से करते रहिएगा.